السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ کچھ خبریں شامل کرتے ہیں شوبز کی رنگا رنگ دنیا سے۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کا سٹائل کاپی کرنے والے اعظم انصاری کو لکھنؤ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سلمان خان کا سٹائل کاپی کرنے والا شخص اعظم انصاری اکثر لکھنؤ کی تاریخی سڑکوں اور یادگار مقامات پر ویڈیوز بناتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہے اور یوٹیوب پر اس کا 1 لاکھ سے زائد سبسکرائبر بھی ہے۔ اعظم انصاری اتوار کو لکھنؤ کے تاریخی کلاک ٹاور پر ایک انسٹاگرام شارٹ ریل بنا رہے تھے جب مشہور سوشل میڈیا سٹار کو دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ٹریفک میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہو گیا۔ تاہم مسافروں کی کئی شکایات کے بعد پولیس موقع پر وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے اعظم انصاری کو عوامی مقام پر سگریٹ نوشی کرتے بھی دیکھا، جس پر پولیس نے ان پر جرمانہ عائد کرتے ہوئے انہیں جیل میں بند کر دیا۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کے بھانجے اداکار عمران خان کی برسوں بعد نئی تصویر منظر عام پر آئی ہے۔ مشہور فلم دہلی بیلی کے اداکار عمران خان عرصے دراز سے سوشل میڈیا اور شوبز انڈسٹری سے دور تھے۔ عمران خان کی 2015 کے بعد کوئی فلم اور 2018 کے بعد کوئی سوشل میڈیا پوسٹ سامنے نہیں آئی۔ عید کے موقع پر عمران خان کی بیٹی عائرہ خان کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر چند تصاویر شیئر کی گئی جن میں عمران خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کزنز کے ہمراہ اس تصویر میں عمران خان کو پہچاننا کافی مشکل ہے، جبکہ ان کے مداح تاحال کمنٹ باکس میں عمران خان کو خوبصورت قرار دے رہے ہیں۔ مداحوں کی جانب سے عمران خان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے فلموں میں کام کریں۔ پاکستانی خوبرو اداکار نیلم منیر نے اپنی منگنی اور شادی سے متعلق پھیلی افواہوں کی تردید کر دی ہے۔ نیلم منیر نے اپنے سوشل میڈیا انسٹاگرام کی سٹوری میں شادی اور منگنی سے متعلق پھیلی خبروں کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم چکر کی اداکارہ نیلم منیر نے انسٹا سٹوری پر لکھا ہے کہ میری کوئی منگنی نہیں ہوئی اور نہ ہی شادی ہو رہی ہے۔ میری شادی سے متعلق پھیلی سب افواہیں بے بنیاد ہیں۔ بھارتی سینئر اداکار نیتو کپور نے انکشاف کیا ہے کہ شوہر رشی کپور کی وفات کے بعد کچھ لوگ مجھے روتی ہوئی بیوہ کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ نیتو کپور نے حال ہی میں اپنے ایک ویڈیو کے دوران شوہر اداکار رشی کپور کی وفات کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور معاشرے کے رویے پر بات کی ہے۔ نیتو کپور نے کہا ہے کہ انہیں بہت سارے انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے نفرت انگیز کمنٹس کا سامنا تھا۔ انہیں ایسے صارفین کو خصوصی طور پر بلاک کرنا پڑا تھا۔ نیتو کپور کا کہنا ہے کہ انہیں خوش دیکھ کر بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ شوہر مر گیا ہے اور یہ اتنا انجوائے کر رہی ہے، وہ بیوہ ہو کر اتنا خوش نظر آتی ہیں اور یہ کچھ لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کہتی ہوں کہ میں بالکل ویسی زندگی جی رہی ہوں جیسی میں جینا چاہتی ہوں، میں ایسی ہی رہوں گی، میں اس طرح سے اپنے شوہر کے کھونے کے غم سے نمٹوں گی۔ کچھ لوگ رو رو کر غم کرتے ہیں اور کچھ لوگ خوش ہو کر، میں خوش رہ کر اپنے شوہر کے کھونے کا غم کروں گی۔ نیتو کپور کا رشی کپور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں بھول سکتی، وہ میرے دل میں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، میرے بچوں کے ساتھ ہیں اور ساری زندگی رہیں گے۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کے تنسیح نکاح کا دعویٰ دائر کرنے کے بعد ان کی سابقہ اہلیہ و اداکارہ سیدہ طوبہ انور کی پہلی پوسٹ سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز سیدہ طوبہ انور نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی تصویر شیئر کی، جس میں وہ والدہ کے گلے لگی ہوئی ہیں اور کافی خوش نظر آ رہی ہیں۔ سیدہ طوبہ انور نے یہ تصویر مدرس ڈے کے موقع پر شیئر کی اور کیپشن میں لکھا ہے کہ میری ہمت، میرا سہارا، میرا حوصلہ، میری ہر مشکل میں آسانی صرف میری ماں ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کو دعا کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ میری ہر کامیابی کا راز میرے والدین ہیں۔ اداکار نے اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید کہا کہ جلد واپس آ جائیں، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید مسجد میں شوٹنگ کے الزام سے بری ہو گئے۔ لاہور کے ایڈیشنل سیکشن جج محمد مشتاق نے صبا قمر اور بلال سعید کی بریت کی درخواستیں منظور کی۔ واضح رہے کہ 2020 میں لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان میں مبینہ رقص کے معاملے پر اداکارہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید کے خلاف مقدمہ تھانہ اکبری گیٹ میں وکیل فرحت منظور کی درخواست پر درج کیا گیا تھا۔ گلوکار بلال سعید اور اداکارہ صبا قمر کی مسجد وزیر خان میں گانے کی شوٹنگ اور رقص پر سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید اور مذمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دونوں کے خلاف دفعہ
295 के तहत दर्ज की गई थी और FIR में कहा गया था कि अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद ने मस्जिद के तकद्दुस पामाल किया, लिहाजा इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोनों फनकारों की जानिब से इस मामले पर माफी भी मांगी गई थी, जबकि महकमा औकाफ ने मस्जिद में गाने की शूटिंग की इजाजत देने पर मस्जिद के मैनेजर को मुअत्तल कर दिया था। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 8 सितंबर 2021 को अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के मुसलसल गैर हाजिर होने पर वारंट जारी किए। इसके बाद अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद की जानिब से बर्रियत की दरख्वास्तें दायर की गईं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। ताहम 30 मार्च 2022 को दरख्वास्तें खारिज करने का इकदाम चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार सबा कमर और बिलाल सईद का अपने मुवक्कफ में कहना था कि औकाफ की रिपोर्ट हमारे हक में है और कोई गैर इखलाकी अमल नहीं हुआ था। वीडियो को एडिट करके और म्यूजिक लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। एडिशनल सेशन जज मलिक मुश्ताक ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके 2 अप्रैल को जवाब तलब किया था। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ने मदर्स डे पर सोशल मीडिया पर अपनी माओं के लिए मोहब्बत भरे पैगाम शेयर किए हैं। पाकिस्तानी अदाकारा माया अली ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी वालिदा को माओं के आलमी दिन की मुबारकबाद देते हुए लिखा कि प्यारी अम्मी, मैं जानती हूँ ये दिन आपके हर छोटे से छोटे काम के लिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए काफी नहीं है जो आपने अपने बच्चों के लिए किया है। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं आज जो भी हूँ और जहाँ भी हूँ ये सिर्फ आप और आपके ख्वाबों की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने लिखा कि आप हमेशा इसी तरह हमारे साथ रहें, आमीन। काश मैं भी थोड़ा सा आप जैसी बन सकती। माया अली ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा है कि तमाम माओं को मदर्स डे मुबारक हो। माँ तो माँ होती है। अदाकारा मावरा हुसैन ने इंस्टाग्राम पर इस खास दिन के मौका पर वालिदा के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मदर्स डे मुबारक हो प्यारी लड़की, मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करती हूँ। अदाकारा अरवा हुसैन ने भी इस मौका पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वालिदा के हमरा तस्वीर शेयर की और उन्होंने लिखा कि मदर्स डे मुबारक हो मेरी खूबसूरत माँ, आप हमेशा के लिए एक मिसाल रही हैं। अदाकार इमरान अब्बास ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इस अहम दिन पर एक वीडियो शेयर की है। इसमें कब्रिस्तान का मंजर दिखाया जा सकता है। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वो जहाँ भी हैं तमाम माओं के मदर्स डे मुबारक हो। जबकि अदाकार आजान सनी खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर वालिदा के साथ अपनी बचपन की एक यादगार तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं जो कुछ था हूँ और बनूंगा अल्लाह के बाद आपकी वजह से हूँ। उन्होंने अपनी वालिदा अदाकारा ज़ेबा बख्तियार को मदर्स डे की मुबारकबाद दी है। इसके अलावा अदाकार सनम बलोच ने खास मौका पर अपनी बेटी के साथ खूबसूरत और यादगार तस्वीर शेयर की है। भारतीय अदाकारा और मॉडल माही विश ने कहा है इन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की धमकियां मिली हैं। इस हवाले से उन्होंने बताया कि मुंबई में इनकी गाड़ी को टक्कर मारने वाले शख्स ने न सिर्फ इन्हें गालियां दी बल्कि जिनसी ज्यादती की धमकियां भी दी। अदाकारा ने कहा कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया मेरी 2 साला बेटी तारा भी कार में मौजूद थी और खौफजदा हो गई थी। माही विच का कहना था कि मज़कूरा शख्स के साथ इसकी गाड़ी में इसकी बीवी भी सवार थी। वाज़ेह रहे कि 40 साला माही विच ज्यादातर मलयालम और हिंदी फिल्मों में जलवागर हुई हैं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने खूबसूरत अंगूठी के हमरा तस्वीर शेयर करते हुए आज के दिन को अपनी जिंदगी का अहम तरीन दिन करार दिया है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अंगूठी के हमरा अपनी मुख्तलिफ हंसती मुस्कुराती तस्वीर शेयर की गई। तस्वीर में अदाकारा के हाथ में पहनी अंगूठी वाज़ेह है, जबकि एक तस्वीर में अदाकारा को किसी का हाथ थामे भी देखा जा सकता है। एक तस्वीर में सोनाक्षी किसी का हाथ थामे खड़ी मुस्कुरा रही हैं, जबकि एक तस्वीर में किसी का बाजू पकड़े खड़ी है जो गालिबन किसी मर्द का है। अदाकार ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है मेरे लिए बड़ा दिन मेरे सबसे बड़े ख्वाबों में से एक हकीकत बनने वाला है और मैं उसे आपके साथ शेयर करने का इंतजार नहीं कर सकती। अदाकारा ने मजीद कहा कि यकीन नहीं आता कि ये इतना आसान था। ताहम अदाकारा ने बाज़ाब्ता तौर पर मंगनी या मंगेतर का ऐलान नहीं किया। बॉलीवुड की मकबूल तरीन अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी मालती मैरी की तस्वीर पहली बार सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। प्रियंका चोपड़ा ने माओं के आलमी दिन के मौका पर एक तवील पैगाम लिखा और साथ ही शौहर निक जोन्स के हमरा अपनी बेटी मालती मैरी की तस्वीर शेयर की। तस्वीर में देखा जा सकता है कि प्रियंका बेटी को सीने से लगाई हुई, जबकि इसकी आंखों
پر سفید رنگ کا دل والا ایموجی ہے۔ پرینکا نے لکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو نوزائیدہ انتہائی نگہداشت یونٹ NICU میں 100 دن گزارنے کے بعد پہلی بار گھر لے کر آئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کے اسپتال، ڈاکٹرز اور نرسوں کا ان کی بیٹی کا خیال رکھنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ کراچی بھی پاکستان کا قدیمی شہر تھا اور یہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ پھر اس شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ صدر ایوب نے 1958 میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ اسی دوران عارضی طور پر پہلے سے موجود کوٹوہاری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا، لہذا 1960 میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ 1964 میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے۔ اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈوکسیاڈز نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے تاریخی اور قابل دید مقامات میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامن کوہ اور چھتر باغ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کی حسین جات حضرت امام بری کا مزار بھی ہے۔ حضرت مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گورا شریف میں واقع ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلام آباد کی تہذیب و ثقافت وادی انڈس کی ثقافت اور کوٹوہاری سماج کا حسین امتزاج ہے۔ یہ آریہ خاندان کا وسط ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا جاتا تھا۔ پھر ان کی یہ تہذیب و ثقافت 18ویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت سارے عظیم جنگی خاندان جن میں سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی اور دیگر لشکر کشوں نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ جدید اسلام آباد قدیم سیف پور ہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، جہاں انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ اس طرح یہاں بر صغیر کے تقریباً تمام علاقوں کی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے اب پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک قومی اور عالمی مارکیٹ کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی تعمیرات میں
जिद्दत आती गई और इस खूबसूरत शहर को कई तारीखी और सरकारी इमारतों से नवाज दिया गया। इस शहर के मशरकी जानिब मरगी दिलकश पहाड़ियाँ दुनिया भर के सयाहों के लिए तफरीह का समा पेश करती हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद को बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी इमारतों में पाकिस्तान हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली, नेशनल यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कई इमारतें शामिल हैं। इस शहर के नजदीक मारूफ कदीमी और तारीखी शहर टैक्सिला भी वाक़ है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिटी शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद शहर का रकबा 120 मुरब्बा किलोमीटर और देहाती रकबा 466 मुरब्बा किलोमीटर है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, जो मुसलमानों की इबादतगाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है, जिसके चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस डिजाइन में 8 शेलनुमा ढलवान छतें हैं, जो एक सहरुही इबादतगाह बनाती हैं। ये मस्जिद 33 एकड़ के रकबे पर मुहित है। 1966 में जब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की। 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें 17 ममालिक के मेमारों ने 43 तजावीज़ पेश की। जीतने वाला डिज़ाइन तुर्की के मेमार का था। इसके मंसूबे के लिए 48 एकड़ आराजी तफवीज़ की गई और इस पर अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों को तफवीज़ किया गया। मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 में नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसकी क़ियादत अजीम खान ने की, और उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से फंड किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फंडिंग में अहम किरदार अदा किया और मस्जिद इसकी तरफ जाने वाली सड़क दोनों का नाम 1975 में इनके कत्ल के बाद इनके नाम पर रखा गया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के जानशीन शाह खालिद ने अक्टूबर 1976 में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। ये फैसल एवेन्यू के शमाली सिरे पर हिमालय के मगरबी दामन में मारगला पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा करती है। ये मस्जिद पाकिस्तान में सियाहों की बड़ी तवज्जो का मरकज है और इस्लामी फन तामीर का एक बाअसर टुकड़ा भी। मस्जिद की तामीर सऊदी शाह फैसल की जानिब से 28 मिलियन डॉलर की ग्रांट के बाद शुरू हुई। 1978 में तामीराती मायदे पर दस्तखत किए। मस्जिद के बारे में बुनियादी मालूमात संगे बुनियाद पर लिखी गई है। 18 जून 1988 को पहली नमाज अदा की गई। फैसल मस्जिद 1986 से 1993 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो अब भी दुनिया भर में सलाहियत के लिहाज से 5वीं बड़ी मस्जिद है।
वेलकम बैक। अब कुछ खबरें शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। आपको बताते चलें, कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने माओ से मोहब्बत के इजहार के आलमी दिन पर मदाहों को अपनी कहानी सुनाई है। शोएब अख्तर ने बताया कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी मां के लिए 11 साल गाड़ी चलाई, 3 घंटे रोज अपनी मां के लिए ड्राइविंग की है। मेरी मां ने जहां घूमना होता था मैं इन्हें घुमाता था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना था कि मेरी मां जो ख्वाहिश करती थी वो पूरी करता था। वालिदैन जैसे भी हूँ इनकी कदर करनी चाहिए। जब अपने वालिदैन की इज्जत करो तो अल्लाह आपके लिए कामयाबी और इज्जत लाजिम कर देता है। अपने वालिदैन के नौकर बन जाओ तो अल्लाह आपको दुनिया का बादशाह बना देता है। शोएब अख्तर ने कहा कि भारत में लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि मैं भारतीयों की इज्जत करता हूँ। सोशल मीडिया पर मारूफ शख्सियत अपनी तस्वीर शेयर करते हैं और अब कौमी क्रिकेट वहाब रियाज ने भी अपने बचपन को याद किया है। इंस्टाग्राम पर वहाब रियाज ने वालिदा के हमरा जवानी और बचपन की 2 तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें उन्हें वालिदा के हमरा खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। बचपन की तस्वीर में वहाब रियाज को वालिदा के गले में हाथ डाले देखा जा सकता है, जबकि जवानी की तस्वीर में क्रिकेटर ने अपनी वालिदा को सीने से लगा रखा है। वहाब रियाज ने मदर्स डे के मौका पर जारी की गई इस तस्वीर में तमाम माओं के लिए दुआया कलिमात लिखे। उन्होंने लिखा कि अल्लाह पाक तमाम मजबूत और खूबसूरत माओं को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे। मैड्रिड ओपन में स्पेन से ताल्लुक रखने वाले 19 साला कार्लोस ने एक और बड़ा अपसेट कर दिया। क्वार्टर फाइनल में राफेल को हराने के बाद कार्लोस ने सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को भी शिकस्त दे दी। मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में राइजिंग स्टार कार्लोस और जोकोविच के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहला सेट जोकोविच ने टाई ब्रेक पर जीता, लेकिन अगले सेट में कार्लोस ने 5-7 की कामयाबी के साथ मुकाबला बराबर कर दिया, जिसके बाद फैसला कुन सेट में भी जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें कार्लोस ने टाई ब्रेक पर फतह के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में अफगान क्रिकेट राशिद खान भी मरहूम वालिदा को याद करते हुए जज्बाती हो गए। अफगानिस्तान के लीग स्पिनर राशिद खान ने मदर्स डे की मुनासबत से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर अपलोड की, जिसमें वो अपनी वालिदा की कब्र पर फातिहा कर रहे हैं। और राशिद खान ने मरहूमा वालिदा को याद करते हुए जज्बाती पैगाम लिखा कि क्या आप कुछ देर के लिए वापस आ सकती हैं? मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ और आपको मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं आपको मजबूती से पकड़ना चाहता हूँ, आपको कभी जाने नहीं देना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपको याद रखना आसान है, मैं ये हर रोज़ करता हूँ, लेकिन आपकी कमी दिल का दर्द है जो कभी दूर नहीं होता। गुज़िश्ता साल ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन होने वाले सेमीफाइनल से कबल पाकिस्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल से कबल रिजवान को शदीद सीने में तकलीफ समेत बुखार और खांसी के बायस कबल अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो 2 रोज तक ICU में जेरे इलाज रहे। सेमीफाइनल से कबल तबीयत खराबी के हवाले से मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल हेडक्वार्टर डॉक्टर नजीबुल्लाह सुमरू ने PCB के YouTube चैनल पर कुछ इंकशाफात किए थे। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, नजर धुंधला रही थी। जब अस्पताल पहुंचे तो सांस रुक गई थी, नजर के सामने कुछ न था। उन्होंने कहा कि नर्स ने आकर कहा घबराना नहीं, 20 मिनट और ताखीर हो जाती तो नुकसान होता। जिसके बाद अस्पताल 12 से 13 टेस्ट हुए। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि मुझे कहा गया कि 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे सेमीफाइनल खेलना है। डॉक्टर्स का कहना था कि मैच के दिन चले जाना, लेकिन मैंने कहा मैच से कब टीम को ज्वाइन करना है। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर का कहना था कि मैंने 2 रातें ICU में गुजार कर फिटनेस टेस्ट दिया, जिसके बाद मजीद एतमाद मिला था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। अल्लाह हाफ़िज़।